Hi everyone, welcome back to another video. And in today's video, I'm going to be talking about the quantum numbers. Okay, so इससे पहले वाली वीडियो में I have discussed the reason of existence of the quantum mechanical model, and in today's video, I'm going to talk about the quantum numbers. Okay, so अगर बहुत ही layman language में बात की जाए, so quantum numbers are nothing but just the address of your electron inside the atom. जैसे हमारा एक एड्रेस होता है when we order stuff, let's say food, clothes, whatever, so online of course, so we need to give our address so that we get our doorstep delivery. तो उसके लिए we need to provide some credentials. For example, we need to provide the country where we live, because we don't want our food to be delivered in Paris, right? So as long as we don't live in Paris, so this is the first thing which you need to provide. Second thing is our city, because again important. Third thing is our place, because city may be where in your, let's say if you live in Delhi, so Delhi may be kahan, where do you live in Delhi, there are different places in Delhi which you can be living in, so you need to provide that. Third thing is, and the fourth thing is, you need to provide your house number, your floor number or whatever. So basically ये जो house number, floor number होता है, and your pin code and your floor, whatever all these details or credentials are necessary in order to get your food, whatever you ordered, to be delivered at your doorstep, है ना. तो exactly ऐसे इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है inside your atom. For example, हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं. In case let's say if we talk about sodium is having 11 electrons. ओके, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन में हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है वो अलग है. हाउ डू आई नो कि मैं किसी एक स्पेसिफिकली अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, सो आई नीड टू नो द एड्रेस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, और वो मुझे कैसे पता चलेगा? बाय द क्वांटम नंबर्स. ओके, सो दिस सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, वी हैव 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स जो हम आज पढ़ेंगे. जैसे मेरे पास 4 डिफरेंट थिंग्स हैं अबाउट माई एड्रेस, द कंट्री, द सिटी, द प्लेस एंड द हाउस नंबर, फ्लैट नंबर एक्सेट्रा. तो ऐसे ही हमारे क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, एंड दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर यूनिक फॉर एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन इनसाइड योर एटम. क्लियर? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट. सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एज द नेम सजेस्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो एज ऑफ कोर्स इट इज़ एनालॉगस टू द कंट्री ऑफ योर कंट्री इन योर एड्रेस, है ना. कंट्री इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू रेफर टू व्हेन यू टॉक अबाउट योर एड्रेस. सो वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे फर्स्ट चीज़ है जो हम बताएंगे ऑफ अबाउट आवर इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ द शेल नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. सो हमारे पास एक एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स होते हैं. वी हैव K, L, M, N एंड सो ऑन शेल्स, और इन शेल से एसोसिएटेड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है. तो जैसे हमारा K शेल इज एसोसिएटेड विद द N नंबर इज 1, L इज 2, M is 3, N is 4 and so on. So if I say that my principal quantum number is 1 or the N value is, इसको हम N से डिनोट करते हैं, small n से, ठीक है. If I say the N value is 1, so we say that the principal quantum number is 1, or it is present in the kth shell or the first shell, ठीक है. If I say that the principal quantum number is 2, okay, or the shell number is 2, it means that is present in the L shell, okay, and so on. अगर हम 3 है तो हम बोलेंगे M shell में है, 4 है तो हम बोलेंगे N shell में है, and so on. The principal quantum number is basically going to tell me about the energy of the electron. जो सारे मेरे 4 क्वांटम नंबर्स हैं ना, इन सब के अंदर एक रीज़न छुपा है, इन सब के अंदर एक पैरामीटर छुपा है जो ये लोग बताते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एनर्जी. हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, हायर इज गोइंग टू बी द एनर्जी. अब ये क्यों? याद थोड़ा ना कर लेंगे इसको कि हायर है तो हायर होगा. वी नीड टू नो द रीज़न, राइट. ऐसा क्यों? सो जैसे कि हमारा अगर बोहर मॉडल के बारे में याद करें, सो वी सेड दैट देयर इज अ न्यूक्लियस in between and there are orbits in which the electron is going to be present, है ना. अब ये जो वर्ड है ऑर्बिट, इसको हमें यूज़ नहीं करना है बिकॉज ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को, बिकॉज हाइजेनबर्ग वेरी क्लियरली सेड कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट ट्रैजेक्टरीज, वी कैन नॉट टॉक अबाउट पाथ्स. बट ये जो ऑर्बिट है वो एक पाथ ही तो है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड बी टॉकिंग अबाउट. तो वी विल नॉट यूज़ दिस वर्ड ऑर्बिट वेरी ऑफन, वी विल यूज़ द वर्ड शेल फ्रॉम नाउ ऑन. तो दिस इज़ द फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 1, दिस इज द सेकेंड शेल, n इज इक्वल टू 2. क्लियर? तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है ना, एंड वी नो दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. तो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ चार्ज ऑफ -1 एंड न्यूक्लियस इज हैविंग अ चार्ज ऑफ +1. सो ऑफ कोर्स दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर.
राइट। तो अगर इन्हें कोई एनर्जी रोक ना रही होती तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते, है ना, और एक दूसरे में मिल जाते। और अगर ऐसा हो जाता तो वर्ल्ड अराउंड अस वुड कोलैप्स, पर ऐसा होता नहीं है, वर्ल्ड अराउंड अस इज क्वाइट स्टेबल। तो इसलिए ये जो कोलैप्स नहीं हो रहे हैं, ये आपस में जो मिल नहीं रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक सर्टेन एनर्जी होती है जो इस इलेक्ट्रॉन को दूर रख रही है इस न्यूक्लियस से, वरना ये आपस में अट्रैक्ट हो जाते, है ना। तो अब ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इसको एक दूसरे को दूर रख रही है, right, when it is in the n is equal to 1. when the electron is in n is equal to 2, तो इलेक्ट्रॉन को अब इतनी दूर नहीं होना, इसको इतनी दूर होना है, ओके। सो when two things when they want to meet, okay, you need to provide some energy कि वो थोड़ा दूर रहें, तो एक सर्टेन एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट तुम्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि वो इतनी दूर रहें। इतनी दूर रहोगे तो यू नीड सर्टेन एनर्जी, इतनी दूर रखने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, right? So that is why this electron is going to be having a higher energy as compared to the electron in the n is equal to 1 shell, है ना। अगर कोई हमारा let's say एक और शेल होता और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, तो अब आई नीड टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कीप द इलेक्ट्रॉन और दूर, है ना। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू हैव अ हायर एनर्जी इन अ n is equal to 3 shell. So as your shell number increases, your principal quantum number increases, your energy of the electron also increases. Is that clear? Okay. Moving on, we have the second subshell, which is second quantum number, which is your azimuthal quantum number. Azimuthal क्वांटम नंबर, ओके। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, तो ऐसे ही याद कर लेना, बिकॉज समटाइम्स यू नो इन पेपर्स दे कैन आस्क यू व्हाट इज द सब्सिडरी क्वांटम नंबर एंड देन यू विल नॉट हैव की एनी आइडिया कि इसको ही वही कहते हैं, है ना। सो सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एल। वो स्मॉल एन था, दिस इज स्मॉल एल, एल फॉर लायन, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू 0 टू n-1, ठीक है। तो n वैल्यू विच इज द शेल वैल्यू यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द l। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा n वैल्यू है और n वैल्यू यू डेफिनेटली नीड टू नो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट योर l विच इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो हमारा ये जो l सबशेल होता है, जैसे उस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज टेलिंग मी अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, azimuthal quantum number tells us about the shape of your subshell, ठीक है। n value is the shell number of shell, n is equal to 1, the shell number is 1, n is equal to 2, the shell number is equal to 2, n is equal to 3, shell is equal to 3. Now the subshell is the shape of that of your the shape of orbital in which your electron is present. Clear? तो जो हमारा l है ये हमारा different kinds of subshells, different kinds of shapes of subshells are possible. For example, we have S, we have P, we have D and we have F. ये हमारा different subshells हैं जो possible हैं. Clear? S is basically round और it is spherical. It is not circular. कुछ भी 2D नहीं है यहाँ पे, सब कुछ 3D है, ठीक है। P is dumbbell shaped, D is double dumbbell shaped and F is a complex shape which is not able to be drawn on the board like this, but ये different shapes हैं of orbitals which are present, of subshells which are present. S subshell जो हमारा है, this is having the L value of 0, P is having the L value of 1, D is having the L value of 2 and F is having the L value of 3. Clear? So if somebody says ki what is the L value for D, you know it is 2. If someone says that what is the shape for your L is equal to 1, you know it is P, so you know it is dumbbell. Clear? So अब अगर मैं बात करूँ what is the formula for your L is 0 to n-1. So let's say if n is equal to 2, your L is going to be equal to 0 to 2 minus 1, which is 0 to 1, which is 0 and 1, है ना। So if your electron is present in the n is equal to 2 shell, the subshells are going to be 0 and 1. 0 मतलब होता है S और 1 मतलब होता है P. Okay, so that is how you find out the value of your subshell. Clear? अभी जो S और P हैं इनके different shapes हैं as you already know, and you know what shape is associated with which azimuthal quantum number. Clear? If for example, one more example, if I give if n is equal to 3, okay, so L is going to be 0 to 3 minus 1, which is 0 to 2.
and 0 to 2 में मतलब 0, 1 and 2. So if any shell is, if any electron is present in n is equal to 3 shell, so your L numbers are going to be 0, 1 and 2. 0 मतलब होता है S, 1 मतलब होता है P, 2 मतलब होता है D. Okay, so your n is equal to 3 shell is going to have S subshell, P subshell and D subshell. ये जो हमारा azimuthal है वो subshells हैं, ठीक है, और उनके different shapes हैं. Clear? Okay, so now the third one is your third quantum number, which is your magnetic quantum number. Okay, the magnetic quantum number is denoted by letter small m s. Okay, इसका भी फॉर्मूला होता है, इट इज 2l plus 1. ओके, जैसे अभी हमारे ऊपर फॉर्मूला 0 to n-1 था, वैसे दिस इज 2l plus 1. अब ये 2l plus 1 है. For example, if I want to find out the, and जैसे for example your principal quantum number is talking about the energy, azimuthal is talking about the shape, वैसे ही your magnetic quantum number is talking about your orientation of your subshell that your electron is present in. Shell हमारा हो गया KLMN, सबशेल हमारा हो गया SPDF, है ना. अब उनकी भी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं. S में सर कुछ ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं, P में कुछ ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं, D में कुछ ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं. तो वो हमारा बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो हमारा, अगर मैं S के लिए बात करूँ, S इज़ व्हाट, S में हमारा L क्या होता है, 0 होता है. S सबशेल में L वैल्यू इज 0. क्लियर? सो MS इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 into 0 plus 1, so it's 1. Okay, so S subshell is only having one orientation, जो तुम्हें दिख भी रहा है क्लियरली. ऐसे स्फेरिकल है तो एक ही स्फीयर पॉसिबल है, पूरी तरफ से एक ही ओरिएंटेशन है, ठीक है, जहाँ से भी देखोगे वो एक जैसा ही दिखेगा. सो द ओरिएंटेशन फॉर S subshell is 1. अगर मैं बात करूँ योर MS के लिए, फॉर योर L is equal to 1. L is equal to 1 मतलब P subshell, है ना. So MS is going to be what, 2 into 1 plus 1, which is 3. Okay, so your P subshell has 3 different orientations which are possible. So it can be like this, it can be like this, and it can be like this. ठीक है, this is on the y-axis, this is on the x-axis, and this is on the z-axis. So this is py, px and pz. Okay, 3 different orientations for your p are possible. ठीक है, तो ये जो p है इसमें 3 different orientations possible है. s में एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल थी, यहीं पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है. यहाँ पे 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो p के अंदर 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, ये जो प्लेसेस है ना, जो मैं बोल रही हूँ बार बार, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, इसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल. क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग वॉज शेल, सेकेंड वॉज सब शेल विच इज SPDF. ओके, उसमें भी थर्ड थिंग इज ऑर्बिटल. ओके, सो दिस P सबशेल हैज़ 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑफकोर्स इसमें 3 स्पेसेस हैं, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. ओके, सिमिलरली तुम्हारा जो S वाला था उसमें हमारा एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ओके, लेट्स से वी टॉक अबाउट द L इज इक्वल टू 2. okay, which means your D subshell. So your MS is going to be what? 2 into 2 plus 1, which is 5. So your D subshell has 5 different orientations. So D जो हमारे पास है, इसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. ओके, सो ऑफकोर्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो D कैन अकोमोडेट a total of 10 electrons. ओके, एंड यू कैन फाइंड आउट फॉर F एंड वेल सो ऑन. क्लियर? तो ये हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट quantum numbers हो गए. Now let's say I'm talking about an electron which is present in the first or let's say in the third n is equal to 3 shell. Okay, the L value is 2. Okay, and it is present, let's say L value is 2 है, मतलब it is in present in D, right? and वो ऐसे present है. D में जो पहले ऑर्बिटल है इसी में दोनों के दोनों present है, ऐसा कुछ है. क्लियर? Now if you talk about these 2 electrons, इनका n भी सेम है, इनका L भी सेम है, और ये सेम ऑर्बिटल में भी हैं, है ना. तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ फिर?
ऑफ कोर्स अगर मैं एड्रेस की बात कर रही हूँ तो इन दोनों का एड्रेस सेम तो नहीं हो सकता. एज यू कैन सी एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डिफरेंट आइडेंटिटी. तो सबका एड्रेस अलग होना इंपॉर्टेंट है. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स दो ऐसे आ गए हैं जिनका n भी सेम है, l भी सेम है और ऑर्बिटल भी सेम है, तो उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए? उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी हैव द फोर्थ एंड द फाइनल क्वांटम नंबर विच इज़ द स्पिन क्वांटम नंबर, which is the fourth quantum number, which is your ms. Okay, this was this was ms. ये ms नहीं था, this was mq. Okay, this is your ms, spin quantum number. Spin quantum number हमारा होता है, it is only having two different values, प्लस हाफ होगी या होगी माइनस हाफ. ओके, सो अगर एक सिंगल ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो एक का स्पिन होता है ऊपर की तरफ और एक का स्पिन होता है नीचे की तरफ. प्लीज़ डोंट इमेजिन इलेक्ट्रॉन टू बी लाइक अ स्मॉल रोप जो एक ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक नीचे की तरफ. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ऐसा कोई पॉइंटिंग नहीं है ऊपर नीचे की तरफ. बट हाँ, ये है कि एक का अगर स्पिन एक डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे का स्पिन होगा, ठीक है. तभी वो आपस में एक साथ प्रेजेंट है. अगर दोनों का स्पिन एक डायरेक्शन में होता तो एक दूसरे को रिपेल करते और एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट ना हो पाते, राइट. सो वन ऑफ देम इज हैविंग अ प्लस हाफ स्पिन, अदर वन डेफिनेटली शुड बी हैविंग अ माइनस हाफ स्पिन. इज दैट क्लियर? सो अगर हम कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन की जिनका n वैल्यू सेम, l वैल्यू सेम, ऑर्बिटल भी सेम, तब भी उनका एड्रेस सेम नहीं होगा क्योंकि उनका जो फोर्थ पॉइंट है विच इज़ योर हाउस नंबर, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट क्योंकि वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर. और वो अगर एक का हाफ है तो दूसरे का प्लस हाफ, एक का माइनस हाफ होगा और दूसरे का प्लस हाफ होगा, ठीक है. सो दिस इज़ योर फोर डिफरेंट क्वांटम नंबर्स. इफ़ आई जस्ट गिव अ स्मॉल कंक्लूजन, द फर्स्ट वन वॉज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और योर n, okay, which is your country name, okay, which is the shell number. N is equal to 1 2 3 4 k element shells, right, tells us about the energy. Second is the azimuthal quantum number, which is the small l, which is going to be telling me about the shape, okay, which is also called as subshell. Okay, s p d f subshells are there, सबकी shapes अलग अलग होती हैं, right. थर्ड वन इज़ योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ टेलिंग मी अबाउट द ओरिएंटेशन, कि अगर S है तो उसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, अगर P है तो उसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, D है तो उसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है. दैट इज़ व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. ओके, और एक ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट, राइट. सो एंड द लास्ट वन इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ ओनली हैविंग टू वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वांटम नंबर एंड these are the four different quantum numbers for any electron inside the atom. And the next video we will learn how to fill different electrons inside, using different electronic configurations in these different subshells that we learned. I hope you understood whatever we have done in today's video. If you have any doubts, of course you can comment down below, and thank you so much for watching.